Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to our online lecture series on electrical machines. This is Muhammad Uwais, your course instructor. In our last lecture, we discussed the torque speed characteristic curve of a synchronous motor, and we also discussed the effect of load changes on a synchronous motor. और हमने देखा था students के speed remains constant even if the load is increased. But there was a constraint that the load has to be, or the load torque has to be within the pull-out torque. Pull-out torque was the maximum torque that can be taken from the motor. And what was the effect of load changes on a synchronous motor? We saw that the internal generated voltage EA, that was constant. The magnitude of EA was constant, whereas the term EA sine delta, which was actually representing, uh, which was related with the power demanded by the load, real power demanded by the load, that component was increasing. So ये discussion हम कर चुके थे और हमने phasor diagram के साथ भी discuss किया था, and we solved example 6.1. आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से सिंक्रोनस मोटर में अगर आप फील्ड करंट को चेंज करते हैं तो उसका क्या इफेक्ट हमारे पास पड़ने वाला है। ठीक है, सो यहाँ पे अब लोड के चेंजेस को हम डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि व्हाट हैपेंस व्हेन द फील्ड करंट इज चेंज्ड। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस दिस इफेक्ट हियर। So here we are changing the field current. Remember, the load is not being changed. So for that, let's have a look at the phasor diagram first. This is a phasor diagram. You can see that we have assumed that the motor is initially operating at a lagging power factor. How do we know that? Because you can see that current IA, this is actually lagging the V phi. ठीक है, तो अगर आप एंगल यहाँ बनाते हैं between V phi and IA, this angle will be negative. ठीक है, ओके। सो अब हम क्या करने जा रहे हैं कि हम फील्ड करंट को बढ़ाएंगे। जब हम फील्ड करंट को बढ़ाएंगे तो क्या इफेक्ट पड़ने वाले हैं हमारे पास स्टूडेंट्स। As you increase the field current, your flux is going to increase, right? So if the flux increases, then this term EA has to increase. Remember, this is different from the previous case. There, EA was constant, but here phi is being changed. Therefore, the magnitude of EA will change. Okay? So if the field current is increased, EA will increase. But the constraint here is that the real power will remain constant. Okay? Why? Because the power, it can be changed only if it has been demanded by the load. Okay? So the power supplied by the motor changes only when the shaft load torque changes. तो हमारे पास जो रिलेशनशिप है पावर का ये हम देख चुके हैं। ठीक है, इफ द पावर इज कांस्टेंट, ठीक है, एंड वी फाई वी नो इज कांस्टेंट। ठीक है, क्योंकि जो हमें सप्लाई है वहां से कांस्टेंट है, वी फाई एक्स ऑफ एस इज कांस्टेंट, देयरफॉर दिस टर्म ई ए साइन डेल्टा हैज टू बी कांस्टेंट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, एंड इफ ई ए साइन डेल्टा टर्म इज कांस्टेंट देन दिस टर्म विल आल्सो बी कांस्टेंट। ठीक है, इफ यू पुट इट इन यू विल सी दैट आई ए cos थीटा इज आल्सो कांस्टेंट। So this term has been shown here in this phasor diagram. We will talk about this phasor diagram in detail. But here you see कि आप देख सकते हैं power constant है, EA change हो रहा है मेरे पास. This is initially EA1. So if you increase the field current, you move on to EA2. You further increase field current, you move on to EA3 and then to EA4. But in all this scenario, what you see is that the real power is constant as discussed previously. ठीक है, यही चीज आपको यहाँ पे बताई हुई है, क्योंकि न ही स्पीड चेंज हो रही है, सिर्फ फील्ड करंट चेंज हो रहा है, और न ही लोड चेंज हो रहा है। देयरफॉर द रियल पावर सप्लाई इट रिमेन्स अनचेंज। सो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है। दो चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यू सी दिस टर्म इज कांस्टेंट, ठीक है, एंड ऑल्सो दिस टर्म इज ऑल्सो कांस्टेंट। ठीक है, दिस इज आई ए कॉस थीटा कंपोनेंट। ठीक है, दिस आई ए cos theta term will remain constant, therefore this term is going to remain constant. This is totally different from the previous case when the load was changing. There the two terms were actually changing. ठीक है, एग्जैक्टली वही चीज मैंने आपको यहाँ पे बताई हुई है, क्योंकि वहां थोड़ी सी जगह कम थी तो मैंने फिगर यहाँ पे एक अलग स्लाइड पे आपको दिखा दिया। आप देख सकते हैं कि ये टर्म्स है आपके पास। हो क्या रहा है कि यू आर इंक्रीजिंग द फील्ड करंट, और फील्ड करंट बढ़ाने की वजह से क्या हो रहा है आपके पास, देयर इज सम इफेक्ट ऑन द आर्मेचर करंट। सो वी विल हैव अ लॉट टू डिस्कस ऑन दिस इफेक्ट। ठीक है,
what happens that armature, the internal generated voltage, it increases as can be seen here. ठीक है, and this term is remaining constant as discussed in our previous slide. ठीक है, ये कौन सी टर्म है मेरे पास? This term is EA sin delta term. ठीक है, whereas this part is, जो part आपको यहाँ दिखाया हुआ है, this is IA cos of theta. Remember, IA is changing here, the current is changing, but this term IA cos theta, this term is remaining constant. ठीक है, so EA is increasing, but you can see this is only possible if it changes by sliding out along the line of constant power. ठीक है, सो आप देख सकते हैं ये जो चेंज हो रहा है इस किस लाइन के ऊपर, इट इज चेंजिंग अक्रॉस दिस लाइन वेयर द पावर इज कांस्टेंट. ठीक है, दिस पावर इज एक्चुअली डिमांडेड बाय द लोड. इफ द लोड चेंजेस ओनली देन दिस पावर विल बी चेंज्ड. नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस फेजर डायग्राम इन डिटेल. ठीक है, हम इसको एक एक करके एक इफेक्ट को डिस्कस करना शुरू करते हैं. सो सबसे पहले हम क्या करने जा रहे हैं कि हम फील्ड करंट को इंक्रीज कर रहे हैं. ठीक है, अज्यूम करें कि इनिशियली हम IA1 के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं, हमने फील्ड करंट को बढ़ाया. इनिशियली इट वाज EA1, नाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ EA विल इंक्रीज. तो अब जो मेरे पास नया EA वो कौन सा आया मेरे पास? दैट EA इज EA2. ठीक है, ये इफेक्ट आप देख सकते हैं. देखें, आपको यहाँ दिखाया जा रहा है कि EA इज इंक्रीजिंग. व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर इंक्रीजिंग द फील्ड करंट. ठीक है, ओके. अब जब हमने ये इफेक्ट देख लिया है, दिस इज ऑल्सो और कंस्ट्रेंट. वाई? बिकॉज द लोड इज नॉट चेंज. ठीक है, लोड रिमेन्स अनचेंज्ड, सो दिस टर्म रिमेन्स कांस्टेंट. सेम वही डिस्कशन है स्टूडेंट जो हम पीछे कर चुके हैं. नेक्स्ट इज दिस टर्म दैट VT इज ऑल्सो कांस्टेंट. अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है? अब हम इस इफेक्ट को जरा गौर से देखते हैं कि इनिशियली वी आर ऑपरेटिंग एट IA1. ठीक है, अब ये IA1 आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है, एक्चुअली आप इसे EA1 के साथ भी दिखा सकते हैं यहाँ पे. सो दिस इज दिस कंपोनेंट. ये कंपोनेंट कौन सा है स्टूडेंट जो मैंने आपको यहाँ रेड से दिखाया हुआ है? दिस इज आवर एक्सेस IA कंपोनेंट. ठीक है, एक्सेस IA कंपोनेंट जो है वो इट इज दिस कंपोनेंट, एंड दिस करंट IA विल बी परपेंडिकुलर टू दिस. ठीक है, सो देयर विल बी फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री. क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि करंट लैग्स. दिस इज आवर रिएक्टेंस. कौन सी रिएक्टेंस है जी? XS, जिसको हमने कहा था. व्हाट इज दिस कंपोनेंट? दिस इज JXS इनटू IA. ये वो कंपोनेंट जो हम डिस्कस कर चुके हैं. तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि दिस टर्म, दिस करंट हैज ऑलवेज टू बी परपेंडिकुलर टू दिस टर्म. अब क्या कर रहे हैं कि अब हम करंट को बढ़ाते हैं. लेट्स सपोज व्हेन यू इंक्रीज द फील्ड करंट, सो फॉर इंस्टेंस यहाँ पे तो आपको एक टर्म दिखाई हुई EA2, बट लेट्स सपोज EA2 के अलावा एक और टर्म देख लेते हैं कि आपके पास, लेट्स सपोज आप इस पॉइंट के ऊपर हैं. ठीक है, लेट दिस बी योर पॉइंट जहां पे आपके पास EA. तो अब जो आपके पास करंट है IA2, लेट सपोज जो आपके पास IA2 है वो कुछ यहाँ पर आ गया है. ठीक है, दिस इज योर न्यू करंट. इसको हम IA2 डैश कह लें फॉर इंस्टेंस, लेट दिस पॉइंट बी EA2 डैश. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास क्या इफेक्ट हो रहा है. आपने ये क्यों हुआ है? बेसिकली आपके पास IF इंक्रीज करने की वजह से. इफ यू इंक्रीज IF, EA2 चेंज्ड, और जब EA2 चेंज होगा तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे जो हम IA2 का वेक्टर बनाएंगे, दिस विल बी अगेन परपेंडिकुलर टू आवर विच कंपोनेंट? एक्सेस IA कंपोनेंट, जिसको मैं अगर चाहूँ तो यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ. ठीक है, यहाँ पे इसका कंपोनेंट होगा. सो द करंट कंपोनेंट हैज टू बी परपेंडिकुलर टू दिस, जो आपको यहाँ दिखाया है. आप चाहे तो इसको यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं. So as you increase the field current, IA starts decreasing. आप देख सकते हैं IA1, और अगर मैं इस कंपोनेंट जो मैंने बनाया, if this is IA2 डैश, तो आप देख सकते हैं it has decreased. ठीक है, IA cos थीटा वाली टर्म कांस्टेंट है स्टूडेंट्स, लेकिन IA has decreased from IA1 to IA डैश. What is IA डैश? This red component जो मैंने यहाँ बनाया. और रिमेंबर, इस वक्त हम किस मोड में? इस वक्त वी आर इन लैगिंग मोड. सो मोटर इज एक्टिंग एज अ लैगिंग लोड. तो पावर फैक्टर अगर आप इसका आइडेंटिफाई करेंगे तो वो आपके पास लैगिंग आ रहा होगा. ठीक है, और जब आपके पास लैगिंग लोड होता है तो बेसिकली मोटर क्या कर रही है? मोटर इज कंज्यूमिंग रिएक्टिव पावर. तो हम देखा था कि लैगिंग लोड के लिए Q इज पॉजिटिव. पॉजिटिव Q का मतलब क्या है? कि द मोटर इज कंज्यूमिंग रिएक्टिव पावर. अच्छा जी, नाउ ओके, लेट मी रब दिस आउट नाउ. ठीक है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, ताकि हम अपने मजीद डिस्कशन को कंटिन्यू कर सकें. ओके, नाउ व्हाट हैपेंस कि अगर अब मैं मजीद फील्ड करंट को इंक्रीज करता हूँ तो क्या होता है? तो मजीद जब मैं फील्ड करंट को इंक्रीज करता हूँ, लेट्स सपोज आई एम नाउ एट पॉइंट EA2.
ठीक है। अब जब मैं EA2 पे आया हूं तो इस पॉइंट पे आप देखिए, दिस इज माय कंपोनेंट, ठीक है, जो विच इज एक्सेस IA कंपोनेंट, ठीक है। इसको अगर मैं यहाँ आपको दिखा सकूं, here you are, this is your J XS IA कंपोनेंट, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपके पास करंट का कंपोनेंट होगा, दिस विल बी परपेंडिकुलर, तो ये आपके पास एक 90 डिग्री के ऊपर लाइन है, तो दिस विल बी योर IA2, एंड दिस मींस कि IA2 इज नाउ इन लाइन विद V5, ठीक है। तो हुआ क्या है कि जब आपने IF को इंक्रीज किया तो आपके पास IA लाइन अप हो गया विद V5, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ है कि मोटर ऑपरेट करी कहाँ पे, एट पावर फैक्टर 1.0, यूनिटी पावर फैक्टर के ऊपर काम करे। इट इज नाउ एट दिस मोमेंट ओनली प्योरली रेजिस्टिव। जो पिछला केस था इसमें आपके पास चूंकि लैगिंग लोड थे, तो आपके पास कुछ रियल कंपोनेंट भी आ रहा होगा और कुछ आपके पास रिएक्टिव भी आ रहा होगा। हेयर वी आर हैव ओनली प्योरली रेजिस्टिव कंपोनेंट, ठीक है। अब आप इफेक्ट देखते जा रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है कि माई आर्मेचर करंट इज डिक्रीजिंग, ठीक है, इनिशियली। अच्छा, अब क्या हो रहा है कि अब मजीद अगर फॉर इंस्टेंस आप इंक्रीज करते हैं, लेट्स सपोज इफ यू मूव ऑन टू IA3, ठीक है, मजीद आपने फील्ड करंट को इंक्रीज किया तो आप इस पॉइंट पे पहुंच गए। देखिए वेक्टर मैंने यहाँ आपको बना दिया कि दिस इज परपेंडिकुलर, दिस हैज टू बी परपेंडिकुलर, ठीक है। और मजीद आप बढ़ाते हैं तो लेट्स फॉर इंस्टेंस आप EA4 पे आ जाते हैं, तो हो क्या रहा है, अब आपके पास नाउ यू हैव एक्चुअली द मोटर इज नाउ इनटू लीडिंग लोड, इट इज एक्टिंग एज अ लीडिंग लोड, ठीक है। आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पे करंट लीड कर गया है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अब करंट इंक्रीज करना शुरू हो गया। देखिए दिस इज IA2, दिस इज IA3 एंड दिस इज IA4, सो IA4 इज ग्रेटर देन IA3 एंड IA3 इज ग्रेटर देन IA2, सो यू सी नाउ द मोटर इज एक्टिंग एज द लीडिंग लोड। अच्छा जी, तो अब क्या हो रहा है, चूंकि मोटर लीडिंग लोड है तो अब क्या करिए, बेसिकली मोटर इज सप्लाइंग रिएक्टिव पावर। अब आपके पास रिएक्टिव पावर मोटर सप्लाई कर रही है, ठीक है। सो आई होप ये जो हमने डिस्कशन की आपको समझ में आ गया हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो अगला टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो व्हेन मोटर वाज इन लैगिंग, व्हेन मोटर वाज एक्टिंग एज लैगिंग लोड, ठीक है, इनिशियली तो आपके पास क्या था, इट वाज कंज्यूमिंग रिएक्टिव पावर, सो योर Q वाज पॉजिटिव। व्हेन इट मूव्ड, ठीक है, जब आपने फील्ड, व्हेन यू इंक्रीज द फील्ड करंट, इट एक्चुअली स्टार्टेड एक्टिंग एज अ लीडिंग लोड। और इन दोनों के दरमियान जो ट्रांजिशन रीजन है वो कौन सा रीजन है, वो हमारे पास यूनिटी पावर फैक्टर है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब मजीद कुछ कंसेप्ट्स को डिस्कस करते हैं। Now, after our discussion of the previous slide, we are now ready to have a look at this curve, which is called the V curve of the synchronous motor. Actually, this is a plot between IA and IF, and this is now very, very easy to understand if you know the if you have understood the previous slide. ठीक है, देखिए हमने देखा था कि हमारे पास क्या इफेक्ट हो रहा था कि जब आप फील्ड करंट को इंक्रीज करते थे तो इनिशियली क्या हो रहा था कि योर IA वाज डिक्रीजिंग, एज यू कैन सी। सो आप इस पॉइंट के ऊपर थे, IA वाज डिक्रीजिंग, ठीक है, आप लैगिंग पावर फैक्टर के अंदर थे। और एक पॉइंट आया था, आप यूनिटी पावर फैक्टर पे पहुंच गए थे, और उसके बाद क्या हुआ था, आपके पास IA दोबारा बढ़ना शुरू हो गया था। ये इफेक्ट आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। सो यू सी एक सॉर्ट ऑफ V बन रहा है आपके पास, ठीक है। और आपके पास अगर देखें तो मिनिमम जो आपके पास आर्मेचर करंट आपको मिल रहा है वो कहाँ मिल रहा है, दैट मिनिमम इज एट यूनिटी पावर फैक्टर, ठीक है। ये चीज हमने देखी थी वहां पर भी, और इसको आप चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं, और चाहें तो आप इस फेजर डायग्राम में यहाँ पे भी देख सकते हैं, ठीक है। इट इज एट दिस पॉइंट IA इज इन लाइन विद V5। इससे नीचे अगर आप हैं फॉर इंस्टेंस इस पॉइंट के ऊपर, तो आपके पास क्या हो रहा है, आर्मेचर करंट इज डिक्रीजिंग, देख सकते हैं IA1, और यहाँ पे मजीद अगर करंट को डिक्रीज करेंगे बिटवीन IA1 एंड IA2, द करंट इज डिक्रीजिंग एज कैन बी सीन हियर, एंड आफ्टर दिस यूनिटी पावर फैक्टर पॉइंट द करंट इज अगेन इंक्रीजिंग, which is also evident here as well on this phasor diagram as well, ठीक है। सो यही चीज आपको बताई हुई है यहाँ पर। सो एट एनी अदर पॉइंट ऑन द कर्व यू विल हैव सम रिएक्टिव पावर, ठीक है, जो कि सप्लाई, या तो सप्लाई मोटर वो सप्लाई कर रही होगी या फिर वो कंज्यूम कर रही होगी। यहाँ पे इस रीजन में मोटर इज सप्लाइंग रिएक्टिव पावर, हेयर इट इज कंज्यूमिंग रिएक्टिव पावर, ठीक है। यही चीज आपको बताई हुई है कि इफ IF इज लेस देन मिनिमम IA, और ये मिनिमम IA कौन सा पॉइंट है, यूनिटी पावर फैक्टर पॉइंट, इससे अगर कम है आपके पास फील्ड करंट तो इस वक्त मोटर कंज्यूम कर रही है, और अगर इससे ज्यादा है तो आपके पास इट इज एक्चुअली सप्लाइंग एंड इट इज एक्टिंग एज अ कैपेसिटर, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम आज के लेक्चर में मजीद नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। ओके, इस कंसेप्ट को हम थोड़ा सा और अगर देख सकें
कि when motor was initially consuming reactive power, तो this was the case जो आप देख सकते हैं, it was current was actually lagging. इस केस में अगर आप EA का प्रोजेक्शन V5 पे बनाएं, यानी कि which will be EA cos delta, you will see that this is less than V5. So this is the mode in which motor is actually consuming reactive power, and we say that actually it is under excited. It is called motor is said to be under excited, or it is in the under excited mode. क्यों कहते हैं अंडर एक्साइटेड? क्योंकि इस वक्त फील्ड करंट हमारे पास कम है, ठीक है। जब आप फील्ड करंट को मजीद बढ़ाएंगे तो अब क्या होगा कि मोटर आपके पास कहाँ है? अब मोटर आपके पास ओवर एक्साइटेड मोड में आ चुकी है और अब आपके पास ये सप्लाई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, साथ साथ यहाँ पे भी देख सकते हैं कि दिस ई इज नाउ ग्रेटर देन V5। तो अगर E का प्रोजेक्शन आप डालेंगे V5 के ऊपर, दिस E cos डेल्टा टर्म, दिस इज ग्रेटर देन V5। सो इससे आपको ये पता चल रहा है कि इफ यू नो द फेजर डायग्राम, you can actually tell कि whether your motor is in over excited mode or it is in under excited mode. So अगर ये projection EA cos delta it is greater than V5, this means कि you are in over excited mode and motor is actually supplying reactive power. Whereas if this is less than V5, EA cos delta is less than V5, here it means that the motor is actually consuming reactive power. Now let's solve an example ताकि हमारे ये concepts मजीद clear हो सके. So here is this example 6.2 student. This is pretty similar to example 6.1. Particularly part A is almost the same as that in example 6.1. So मैं उसे बहुत जल्दी से skip करूँगा. इसके अंदर difference क्या है हमारे पास कि here the motor is initially ऑपरेटिंग एट अ पावर फैक्टर, एट अ लैगिंग पावर फैक्टर, ठीक है। वहां पे जो हमने किया था वो लीडिंग में था, तो हमें करना क्या है, हमें फेजर डायग्राम बनानी है पार्ट ए में। फॉर दैट वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ आई ए एंड ई ए, एंड दिस विल बी डन एग्जैक्टली द सेम वे एज वी डिड फॉर एग्जाम्पल 6.1। सो बेहतर ये कि आप पहले एग्जाम्पल 6.1 देखिए और उसके बाद फिर इस लेक्चर को देखें। इन पार्ट बी दिस इज इंटरेस्टिंग, इट सेज द मोटर फ्लक्स इज इंक्रीज बाय 25%। इनिशियली कितने जी 4 एम्पियर है, अब हमने initially field current 4 ampere which is corresponding to flux. Here the motor flux is now increased by 25%. अब जो मोटर फ्लक्स इंक्रीज हो गया है तो इसका मतलब है क्या होगा, आपके पास इंक्रीज क्या होना है, आपके पास EA इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि EA is directly proportional to K, it is directly proportional to phi and omega where K is your machine constant. So if you increase phi, EA has to increase, and when EA increases your phasor diagram changes. यही चीज हमने पार्ट बी के अंदर करनी है। इसका जो पार्ट सी है वो मैंने स्किप किया स्टूडेंट्स, उसके लिए आपको मैटलैब की जरूरत है, फिलहाल उसको हम यहाँ पे नहीं देख रहे हैं। लेट्स मूव ऑन टू पार्ट ए। So as I said, part A is exactly the copy of example 6.1's part A. Here the input power remains the same because this was done in example 6.1. The only difference here is that the power factor is lagging. So instead of leading, we have used lagging case, and the rest of the parts are exactly the same. I'm not going to do that. If you think you are having some problems here, then please refer to the previous lecture first. ठीक है, हमने current निकाला है, armature current, which comes out to be 25.8 ampere, exactly as we did previously. And now since this is lagging, therefore the angle will be negative, ठीक है। आपने armature current निकाल लिए, and once you have the armature current, you can find out the value of your internal generated voltage as well. Once you have the internal generated voltage, you have its magnitude, you have its angle, now you can draw the phasor diagram. But phasor diagram हम part A और part B दोनों को solve करने के बाद एक साथ देखेंगे। So in part B, it was given that the flux has increased by 25%, and as I said that EA will increase by 25%. So EA की वैल्यू हम पीछे निकाल चुके हैं. So what we are gonna do is we multiply it by 1.25 क्योंकि 25% का इंक्रीमेंट हुआ है. So now the new value of EA2 is 227.5 volts. हमें करना क्या है? We have to draw the phasor diagram. और phasor diagram के लिए जरूरी है कि हमारे पास EA2 का एंगल भी हो, क्योंकि अब आपका जो लोड टॉर्क एंगल है डेल्टा, इट हैज चेंज. टॉर्क एंगल डेल्टा इज नॉट द सेम, ठीक है. सो वी नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि फाई चेंज हो रहा है, ठीक है. बट व्हाट अबाउट डेल्टा, कैसे मालूम करें? ठीक है, उसके लिए हमारे पास एक रिलेशन है जो हमने पीछे देखा था. वी नो इन दिस केस द रियल पावर रिमेन्स द सेम, ठीक है. सो जो पी कंपोनेंट है वो दोनों का सेम है. क्यों? क्योंकि लोड पे हमने कोई चेंज, लोड इज नॉट गोइंग टू चेंज, लोड इज कांस्टेंट. सो देयरफॉर रियल पावर P is constant and P is dependent on our term EA sin delta.
Therefore, for both EA1 and EA2, its component, its vertical component, which is EA sine delta, it has to remain the same. Why? Because the power remains the same. Okay? So therefore, we know that these components are same. And now we have all the parameters. We have the value of delta 1, we have EA1, we have EA2. By just plugging in the values, we can find out the value of delta. ठीक है जी. And once you have the value of delta, you can find the other parts as well. Now for armature current, this armature current is simply by this relationship. And ये कहाँ से आया स्टूडेंट हमारे पास? It's from the equivalent circuit of synchronous motor. Remember, generator में opposite होता है. Here the current flows from terminal to the internal generated voltage. ठीक है, V5 से EA की तरफ current flow करने जा रहे हैं. And since the armature resistance has been neglected, therefore we have not considered here. So by again plugging in the values, you will get to know the value of your armature current. Okay, and finally you can also find out the power factor as well. Now you see the power factor is now 0.974 leading. So now here is our phasor diagram. मैंने दोनों पार्ट ए और पार्ट बी की जो phasor diagram है वो एक साथ आपको दिखा दिए so that you can compare them as well. ठीक है, सो अगर हम फॉर इंस्टेंस पार्ट ए की बात करें तो ये मेरे पास पार्ट ए का कंपोनेंट है. ठीक है, दिस इज माय ईए, और ये जो मेरे पास एक्सेस आई ए जे एक्सेस आई ए कंपोनेंट है, इट इज हियर. ठीक है, अब हुआ क्या है, एंड कॉरेस्पॉन्डिंगली द वैल्यू ऑफ आर्मेचर करंट इज आई ए. नाउ इफ एज यू इंक्रीज द फील्ड करंट, व्हाट हैपेंड दैट ईए इंक्रीज्ड. ठीक है, एंड ईए इंक्रीज हो गया यहाँ पे किस मोड के अंदर है, आप बता सकते हैं स्टूडेंट्स की किस मोड में है. देखिए अगर आप प्रोजेक्शन इसका यहां लेकर जाएं, सो यू विल सी दैट दिस ईए साइन डेल्टा, दिस कंपोनेंट इज लेस देन V5. सो आपके पास किस मोड के अंदर है, वी आर इन अंडर एक्साइटेड मोड. ठीक है, जबकि अब जब आपके पास फील्ड करंट को आपने बढ़ाया है, your EA has increased. ठीक है, now the new value of EA is here. Sorry, let me show it with a highlighter. So यहाँ पे आ चुके हैं. If I can change the color, so this is your EA dash. और अब अगर आप देखेंगे, you will see now the projection of EA dash is greater than V5. ठीक है, so अगर मैं इसको यहाँ दिखा सकूं, so this will be the projection. ठीक है, सो अब आपके पास क्या होगा, दिस टर्म, नाउ दिस टर्म फॉर EA dash, this is greater than V5 now. So machine has now is now operating in over excited mode, and it is now consuming, it is not consuming, it is now supplying reactive power. यही वजह है कि जो आपने पीछे देखा था कि your power factor is now leading. So I hope ये phasor diagram आपको clear है students. Another important point to note here is that the power is remaining constant. यही वजह है कि आप हमने जो रिलेशन यूज किया था, कौन सा रिलेशन, EA sin delta was constant. So for this component as well and for this component, the vertical component remains the same. ओके, इस डिस्कशन के बाद हमें एक चीज ये पता चली है कि पावर फैक्टर को हम करेक्ट कर सकते हैं और या उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं बाय यूजिंग अ सिंक्रोनस मोटर. तो जब आप सिंक्रोनस मोटर या किसी और डिवाइस को यूज कर रहे होते हैं, वी से दैट वी आर एक्चुअली डूइंग पावर फैक्टर करेक्शन, और उसके आपके पास डिफरेंट सेटअप्स होते हैं. यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं सिंक्रोनस मोटर की. इस इफेक्ट को देखते हैं कि किस तरीके से सिंक्रोनस मोटर पावर फैक्टर करेक्ट करने में हमारी हेल्प करती है. उसके लिए लेट्स कंसिडर दिस सिस्टम. ठीक है, हियर वी हैव एन इनफाइनाइट बस जो कि कनेक्टेड है इस इंडस्ट्रियल प्लांट के साथ वाया सम ट्रांसमिशन लाइन. इस इंडस्ट्रियल प्लांट में हमारे पास क्या है, वी हैव टू इंडक्टिव लोड्स. ठीक है, इंडक्शन मोटर्स है हमारे पास. इंडस्ट्री में ज्यादातर आपके पास देखेंगे तो यू विल हैव इंडक्शन मोटर्स. सो इंडक्शन मोटर्स है, और हम क्या करने हैं, हमारे पास एक थर्ड लोड है जो कि एक सिंक्रोनस मोटर है. एंड व्हाट वी आर गोना डू इज कि हम इसके पावर फैक्टर को वेरी करेंगे, एंड वी विल सी कि व्हाट हैपेंस ओवरऑल टू आवर सिस्टम. ठीक है, यही हम करने जा रहे हैं कि अब जब हम पावर फैक्टर एक लोड का, जो हमारे पास लोड 3 है सिंक्रोनस मोटर, उसको चेंज करके देखते हैं कि क्या इफेक्ट पड़ने वाला है. लेट्स डिस्कस दिस कंसेप्ट यूजिंग एन एग्जांपल. सो हियर इज द एग्जांपल 6.3. इस पे हमें यहाँ पे डाटा गिवन है कि वी हैव अ इनफाइनाइट बस व्हिच इज ऑपरेटिंग एट 480 वोल्ट. हमारे पास लोड 1 है, लोड 2 है और लोड 3 है.
लोड 1 हमारे पास एक इंडक्शन मोटर है विच इज कंज्यूमिंग 100 किलोवाट और इसका 0.78 पावर फैक्टर लैगिंग. Same data is given for load 2 as well. And for this load 3, we know that the real power is 150 kilowatt, but we do not know the power factor yet. ठीक है, वो हम देखते हैं कि पार्ट ए बी में हमें वो गिवन है या नहीं. चलिए, so in part B it says, ठीक है, it says that if the synchronous motor is adjusted to operate at 0.8 power factor lagging, what is the transmission line current in the system? अब इस वक्त इनिशियली दिस मोटर इज ऑपरेटिंग एज अ लैगिंग लोड. ठीक है, यानी कि अंडर एक्साइटेड मोड के अंदर है. अब देखते हैं कि हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन में करंट कितना है और कॉरेस्पॉन्डिंगली हम ट्रांसमिशन लाइन के लॉसेस को भी देखते हैं. ठीक है, जो कि पार्ट सी में हमने करने हैं. पार्ट सी में हमसे यही कहा गया है कि आप पार्ट ए और बी में इनके ट्रांसमिशन लॉसेस को कंसिडर करें और उस पर कमेंट करें. पार्ट बी में हम क्या कर रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस लैगिंग पावर फैक्टर लोड, हम इसको अब ऑपरेट करें ओवर एक्साइटेड मोड. और अब जो हमारे पास है इट इज ऑपरेटिंग एट 0.8 पावर फैक्टर लीडिंग. अब देखेंगे कि क्या इफेक्ट पड़ने वाले हैं. ठीक है, सो आई होप यू आर गेटिंग द कंसेप्ट. हम कर क्या रहे हैं, वी आर जस्ट हैविंग अ लुक, वी आर जस्ट कंसिडरिंग हाउ अ सिंक्रोनस मोटर हेल्प्स अस इन इंप्रूविंग आवर पावर फैक्टर. ओके स्टूडेंट्स, तो ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल है और साथ साथ बहुत इंटरेस्टिंग भी है, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह. तो इसके लिए हमें मालूम है दैट S इज इक्वल टू P प्लस जे क्यू. ठीक है जी. अब साथ साथ हमें मालूम है कि थीटा इज गिवन बाय द रिलेशनशिप टेंजेंट इनवर्स Q और P. अच्छा, अब क्या है, हमारे पास जो लोड्स गिवन है हमें उनकी रियल पावर मालूम है. वी नो द रियल पावर ऑफ आवर लोड्स, इट इज गिवन, एंड वी आल्सो नो द वैल्यू ऑफ थीटा, बट वी डू नॉट नो द वैल्यू ऑफ क्यू. देखिए ये क्यू है, और मैं अगर इसको क्लियर कर दूं, दिस इज नॉट थीटा, दिस इज क्यू. अगर मैं इसको थोड़ा सा रब कर सकूं, दोबारा बना देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे. दिस इज क्यू. So now we can find out the value of Q because we have the value of P and we have the value of theta. So उसके बाद इस सवाल के अंदर सब चीजें काफी आसान है. ठीक है, so don't worry about it. So now for each of the load we know what is the value of P and what is the value of theta. How do we know the value of theta? The value of theta is given by this power factor. तो 0.78 हमें मालूम है लैगिंग है, तो cos of theta होता है पावर फैक्टर, उससे हम थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं. And for this case this machine is actually now this power factor this moment is this is in lagging. ठीक है, machine is operating lagging power factor 0.85. it is given to us. Now for first load we can find out the value of Q1 using this relationship. So same वही relationship है जो मैंने आपको बताया था, theta is equal to tangent inverse Q1 upon P1. इससे हम Q1 निकाल लेंगे. Similarly for load 2 we can find out the value of Q2. Load 2 का भी हमें power factor given है. Have a look, it is 0.8 power factor. Okay, now for load 3, this load 3 at this moment is 0.85 power factor. ठीक है, तो इससे हमने Q3 की वैल्यू निकाल ली है. ठीक है, when you put in this value you will see that the value of Q3 is positive. This means कि synchronous motor यहाँ पे consume करे, it is consuming. क्यों, how do we know कि it is consuming? By simply looking at the sign. So it is positive, Q3 is positive, therefore it is consuming. Let's move on. Okay, now we can find out the total power. Simply just add up these terms together and also the Q. ठीक है, और once you have the P and Q you can find out the value of your power factor. ठीक है, power factor is simply cos of theta where theta is tangent inverse Q over P. Total Q हम निकाल चुके हैं, total P निकाल चुके हैं, and you will find out that the power factor is 0.812 lagging overall. ठीक है, what about the line current? This is how you can find out the value of your line current. So I hope ये चीज आपको clear है. It's pretty easy to understand. So part B is just the replica of part A with the only difference that here uh, this is actually now the power factor is now leading. So you have the case of leading power factor 0.85. सब कुछ वही होगा, बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे. Q3 में सब डिफरेंस क्या आ जाएगा, here this angle will be minus. See, so आप जब निकालेंगे this will be minus cos inverse 0.85.
क्यों? Because this is leading, therefore the angle has to be negative. And when you put this negative angle here, you will see that this is minus. And this minus actually tells you that synchronous motor is not consuming. In fact, it is providing the reactive power. It is supplying reactive power to our system. What is the effect when this synchronous motor is actually supplying the reactive power? Let's have a look. सो जब आप टोटल पावर निकालेंगे, दिस विल बी अ टोटल पावर, अगेन उसी तरीके से रियल पावर एंड रिएक्टिव पावर में अब क्या होने वाले, दिस Q3 विल बी नेगेटिव. सो आपके पास जो ओवरऑल रिएक्टिव पावर है, जो डिमांड है, वो आपके पास कम हो गई है, ठीक है, जो आप इनफाइनाइट बस से मांग रहे हैं. सो नाउ इफ यू फाइंड आउट द पावर फैक्टर, यू विल सी योर पावर फैक्टर हैज इम्प्रूव्ड. पहले 0.812 था, अब ये 1 की तरफ जा रहा है. इट इज मोर क्लोज टू यूनिटी पावर फैक्टर. सो योर पावर फैक्टर हैज इम्प्रूव्ड. And also you can see the line current has decreased. It is now 566 ampere. So line current आपके पास कम हो गया है, power factor आपके पास improve हो गया है. This means that this synchronous motor when it is in overexcited mode, कैसे पता चले overexcited mode? When it is in leading a power factor, ठीक है. That case overall it is helping out us by simply improving the power factor of the system and by reducing the line current. लाइन करंट को रिड्यूस करने का क्या एडवांटेज होने वाले, लेट्स हैव अ लुक ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. एंड सो हियर इज अ पार्ट सी. पार्ट सी में हम वी हैव टू फाइंड आउट द ट्रांसमिशन लाइन लॉसेस. फार्मूला इज गिवन टू अस एंड इट इज वेरी ऑब्वियस. पार्ट बी में आपको शायद क्लियर हो गया होगा, वहां पे मैंने जानबूझ के जिक्र नहीं किया था कि नाउ योर लाइन लॉसेस विल सिग्निफिकेंटली decrease. Why? Because your line current has decreased and line losses are proportional to the square of line current. ठीक है, और साथ साथ 3 भी मल्टीप्लाई हो रहा है. 3 वाली टर्म तो चले कांस्टेंट है, ये IL स्क्वायर के साथ चेंज हो रहा है. सो IL डिक्रीज हुआ है, तो आपके पास हेयर योर लाइन लॉसेस हैव एक्चुअली रिड्यूस्ड बाय 28%. So this is the advantage that a synchronous motor offers when it is run in over excited mode. ठीक है, यही हमारे पास एडवांटेज होता है जो आपको यहाँ पे हाईलाइट किया गया है. सो वी often use our synchronous motor in overexcited mode in order to actually affect the or to improve the power factor of the system and overall efficiency of the system. So with this we are done with this topic of synchronous motor and its improvement and the improvement that it offers in power factor. So हमने यहाँ देखा था कि if we have one of our load, जो example हमने देखी थी, and if that load is actually in overexcited mode, load क्या था हमारे पास, synchronous motor था हमारे पास. So that synchronous motor when run in overexcited mode, it offers various advantages, ठीक है, and it is useful for us. क्यों? क्योंकि आपने देखा था कि जब आपने लीडिंग लोड लगाया था, तो जो टोटल रिएक्टिव पावर की डिमांड थी, जो इनफाइनाइट बस या सोर्स की तरफ से जो थी, वो कम हो गई थी. क्यों? देखिए स्टूडेंट्स, वहां पे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हमने किया था ना टोटल Q निकालने के लिए, तो Q3 वाज नेगेटिव, देयरफॉर द टोटल Q डिक्रीज्ड. ठीक है, जब हमने एक सिंक्रोनस मोटर को यूज किया इन ओवर एक्साइटेड मोड. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिंक्रोनस मोटर हैज टू बी ऑपरेटेड इन ओवर एक्साइटेड मोड. ठीक है, तो वो जो रिएक्टिव पावर हमें जरूरत थी लोड सप्लाई की तरफ से या जनरेटर की तरफ से, वो हमें कौन प्रोवाइड कर रहा था, वो हमें सिंक्रोनस मोटर प्रोवाइड कर रहा था. ठीक है, साथ साथ हुआ क्या कि जब रिएक्टिव पावर आपके पास डिक्रीज हो गई, ठीक है, तो आपके पास सप्लाई की तरफ से वो रिएक्टिव पावर फ्लो नहीं कर रही, तो आपके पास जो करंट है वो भी रिड्यूस हो गया. ठीक है, तो आपकी जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं उनमें क्या हुआ, उनके जो लॉसेस हैं वो भी डिक्रीज हो गए. यही चीज हमने एग्जांपल में देखा था. ठीक है, क्यों? क्योंकि लाइन करंट आपके पास लोअर हो चुका था. साथ साथ आपके पास चूंकि ट्रांसमिशन लाइन का करंट अब कम हो चुका है, सो अब दे कैन बी स्मॉलर फॉर अ गिवन रेटेड पावर फ्लो. ठीक है, उनका साइज भी आपके पास कम हो जाने वाला है. और जब आपके पास लो इक्विपमेंट की जो पावर रेटिंग है वो कम हो गई है, कम लाइन करंट फ्लो करना है उसमें से, तो आपके पास ऑब्वियसली इट विल हेल्प यू इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ योर ओवरऑल पावर सिस्टम. ठीक है, साथ साथ आपके पास जब आप इस मोड में यूज करते हैं ओवर एक्साइटेड मोड में, तो आपके पास जो टॉर्क होता है दैट आल्सो इंक्रीजेस. सो ओवरऑल यू सी दैट देयर आर वेरियस एडवांटेजेस एंड इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर अस व्हेन अ सिंक्रोनस मोटर इज यूज्ड दिस वे. सो हियर इज द समरी. जो चीज अभी हमने डिस्कस की, जो कंसेप्ट हमने देखा, ये सिंक्रोनस मोटर हमें पावर फैक्टर करेक्शन प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है, और लो पावर सिस्टम कॉस्ट भी साथ साथ ऑफर कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि लाइन लॉसेस आपके पास जब कम हो जाएंगे, कम करंट फ्लो करेगा, तो आपके पास जो ट्रांसमिशन लाइन है वो आपको उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी, उसका साइज कम हो जाएगा आपके पास. ठीक है, और साथ साथ
एक और चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि आप इसे ओवर एक्साइटेड मोड में यूज कर रहे हैं, और उसकी वजह से क्या हुआ है कि आपके पास जो पुल आउट टॉर्क है, जो मैक्सिमम टॉर्क है, दैट हैज आल्सो इंक्रीज्ड। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसका आपको ख्याल रखना है, या ऑपरेटर को जिसका हमेशा ख्याल करना पड़ेगा, जो इस मशीन को ऑपरेट कर रहा होगा। सिंक्रोनस मोटर को जब आप ओवर एक्साइटेड मोड में यूज करते हैं तो आपको एक हाई फील्ड करंट चाहिए होता है। हाई फील्ड करंट का मतलब ये हाई फ्लक्स चाहिए होता है, और इसकी वजह से जो आपके पास रोटर है उसमें सिग्निफिकेंट हीटिंग होती है। तो देयरफॉर द मशीन हैज टू बी हैंडल्ड केयरफुली। Lastly, before we close this topic, we know that we can use synchronous motor for power factor correction। और पहले अगर हम पहले बात करें तो ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा था, सिंक्रोनस मोटर यूज की जाती थी। आजकल आपके पास और डिफरेंट मेथड्स भी हैं। तो हम करते क्या थे कि आपके पास जो सिंक्रोनस मोटर थी वो कुछ इस तरीके से होती थी कि आप उसके साथ लोड कनेक्ट ही नहीं कर सकते थे। ठीक है, जो उसके फ्रेम में होता था वो इस तरीके से होता था कि दैट वाज नॉट बीइंग यूज्ड फॉर कनेक्टिंग लोड, रादर इट वाज जस्ट यूज्ड फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ योर सिस्टम। ठीक है, यानी सिस्टम के साथ यूज हो रहे होते थे फॉर इम्प्रूवमेंट इन योर पावर फैक्टर करेक्शन। तो जब इस मोड में हम इसे यूज कर रहे होते थे तो दी स्पेशल पर्पस सिंक्रोनस मोटर्स वर कॉल्ड सिंक्रोनस कंडेंसर्स या फिर सिंक्रोनस कैपेसिटर्स। सो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी सिंक्रोनस मोटर के बारे में। सिंक्रोनस मोटर कैन बी यूज्ड एज सिंक्रोनस कंडेंसर इन ऑर्डर टू improve your power factor correction। And with this we have come to the end of this topic of synchronous motor। हमने चूंकि सिंक्रोनस जनरेटर को बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया था, सो इट वाज नॉट रिक्वायर्ड टू डिस्कस द कंसेप्ट अगेन, टू रिपीट द कंसेप्ट अगेन एंड अगेन। ठीक है, सो मैंने आपको तमाम कंसेप्ट उसके बता दिए, आप चाहें तो बुक में भी देख सकते हैं। तमाम कंसेप्ट को अल्हम्दुलिल्लाह हमने कवर कर लिया है। एक जो कंसेप्ट हमारे पास रह गया है दैट इज द स्टार्टर सर्किट फॉर सिंक्रोनस मोटर्स। ये मैं आपको एज असाइनमेंट के तौर पे दे चुका हूँ इन योर कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम। तो ये आपके पास बुक के अंदर भी टॉपिक अवेलेबल है, प्लीज स्टडी इट फ्रॉम द बुक and also from some research papers, because at the end of the semester, somewhere around 20th of June, you have to submit your complex engineering problem. So alhamdulillah, the topic of synchronous AC machines has been completed. We have discussed both the synchronous generator and also the synchronous motor, the various effects, the working principle, the equivalent circuit. In short, we discussed both the topics in detail, and I hope ये अब आपको समझ में आ गए होंगे। Inshallah, from our next lecture we are going to start induction machines। Induction machines में जो machine है जिसको बहुत important है, that is a three-phase induction motor। We shall start that topic from next week, inshallah। So till then, it's Mohammed who is signing off. Should you have any queries, feel free to post your queries via email. And मेरी तरफ से आप सबको एडवांस में ईद मुबारक।